जय सुमन आंटी, जय गुरु जी, जय जय लख 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 शुकराना गुरु जी। मैं दिल्ली तो आरती सत्संग रिकॉर्ड कर रही हैं। पहले भी मैं करिया सी सुमन आंटी, पर मेरा मेरा मैं सत्संग शायद ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੜਗੰਗਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ। ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਟੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਚਾਹ ਮਿਲੀ। ਆਪਣਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟੀਜ਼ ਖਾਈ, ਮੈਂ ਪੈਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਨਾ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਉਂਗਲ ਲਗਾਈ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ। ਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਇੰਨੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਨਮ ਖੂਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ ਫਟਾਫਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 4-5 ਮੈਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਭ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਜਿੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ 1 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ 1 ਉਂਗਲ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਬਲਾ ਟਾਲਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਬਲਾ ਟਾਲਤੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਤਾ ਬੇਟੀ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਤਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ। 5-6 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੀ ਖਾਂਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਔਰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਤੀ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਦੋਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆ ਸਕੂਲ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ 5-5:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਭੋਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਦੇਤਾ, ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਤਾ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, OPT ਆਏਗੀ, ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੜੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ 2-3 ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ 3-4 ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ,
ਉਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਇਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਭੁੱਲਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮਾਫੀ। 7 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੋਤ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦੋਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਜੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਆਲਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। हाँ जी संगत जी, आपने जैसा कि आंटी का सत्संग सुना, आंटी ने कहा कि सत्संग में बहुत सारे उपाय भी आते हैं, कई बार आते हैं, है ना, उपाय शेयर होते हैं, और मैं वो उपाय नहीं कर पाती। संगत जी, बहुत सारी संगत ऐसी है जो सच में इतने सारे उपाय नहीं कर पाती, है ना। और संगत जी, गुरु जी ने जो ये सेवा बख्शी है मुझको कि मैं आप सभी के शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत मेहनत लगती है संगत जी। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अपलोड करूं, आगे भेजूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे सत्संग ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, और बहुत सारे सत्संग ऐसे भी होते हैं जो मैं कई बार समझाती हूँ कि संगत जी आप अपना पर्सनल अनुभव शेयर कीजिए, सत्संग शेयर कीजिए, है ना। लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी सारे सत्संग ऐसे होते हैं कि जो सारा सुनने के बावजूद भी मुझे समझ ही नहीं आता कि इसमें मैं कैसे क्या शेयर करूँ। तो कितने सारे सत्संग छूट जाते हैं। किसी में पीछे से म्यूज़िक की आवाज़ आती रहती है, किसी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यहाँ तक कि बताओ टीवी चलता रहता है और आप सत्संग शेयर करते हैं, तो फिर संगत जी वो सत्संग रह जाते हैं, है ना। तो फिर कई बार तो मैं समझाती हूँ, तो नेक्स्ट सत्संग जब वो दोबारा अपलोड करते हैं तो फिर कई बार तो वो सही हो जाता है और कई बार फिर से सेम गलती रिपीट होती है। 3-4 बार भी जब कोई नहीं समझ पाता तो फिर वो सत्संग कैसे अपलोड होंगे, आप ही बताइए, है ना। आप संगत जी, आप सत्संग सुनने के लिए बैठते हैं
तो आप भी जानना चाहते हैं कि आंटी के साथ या अंकल के साथ ऐसा क्या हुआ है जो उनका बिलीव इतना बड़ा है ना। हम सबका बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि कोई गुरुजी की संगत बनी है और उसका कोई काम गुरुजी ने किया ही ना हो। कुछ ना कुछ तो गुरुजी ने बहुत चमत्कारिक रूप से किया है, जो विश्वास पक्का हुआ है ना। बस वो विश्वास पक्का जो हुआ है ना, वो ही तो, उसी घटना का वर्णन आपको सबके साथ शेयर करना है। और जितना ज़्यादा आप स्ट्रांगली पावरफुल तरीके से अपना सत्संग शेयर करते हैं, तो वो आगे गुरुजी कहते हैं ये वाला सत्संग तो सुमन तेरे को करना ही होगा। तो जब गुरुजी का हुक्म आ जाता है ना, फिर तो वो मैं करती ही करती हूँ संगत जी, उसे कोई भी रोक नहीं पाता। और इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिया कीजिए, है ना। आपके पास मैसेज आते हैं ना जैसे सत्संग शेयर करने के लिए, तो आप बेझिझक क्लियर वॉइस में अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं, है ना, जो सत्संग आप शेयर करना चाहते हैं, आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उसमें आपको किसी न किसी बात के बारे में बताना ज़रूरी है। इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना अनुभव शेयर करना है, ना कि केवल मैसेज और मैसेज और मैसेज। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैसेज तो ऑलरेडी सबके पास पहुंचते हैं, जिसको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आपको यहाँ पे अपने पर्सनल अनुभव शेयर करने हैं। डेफिनेटली आपका सत्संग शेयर होगा। ये तो थी एक बात। और अब दूसरी बात ये कि जैसे मैं आपका सत्संग शेयर करती हूँ, एक सत्संग की सेवा गुरुजी ने महीने में एक बार कराने की जो सेवा मुझको दी है, वो भी अब ये शुरू हो चुका है। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो चुका है। अब ये 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी के दिन सत्संग होने जा रहा है संगत जी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जल्दी जल्दी सत्संग नहीं करा सकते हैं, है ना, कोई भी नहीं करा सकता है। और कुछ लोग करा भी सकते हैं, जिसमें गुरुजी की मेहर ज़्यादा होती है तो वो हर महीने अपने आप करवा भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुजी ने मुझे फ़िलहाल यही हुक्म दिया है कि मैं आप सब के सहयोग से, सेवा से ये सत्संग करूँ, है ना। तो आप भी इस सत्संग का कुछ क्रेडिट ले सकते हैं संगत जी, अपनी छोटी सी सेवा देकर। यदि आप इस सत्संग में जल प्रसाद या लंगर प्रसाद की कोई सेवा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और यहाँ से मिलेगी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स तो संगत जी आपको वैसे भी मिलेगी, चाहे आप सेवा देते हैं तब भी और नहीं देते हैं तब भी, है ना। लेकिन जब आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, यानी कि सत्संग का थोड़ा सा पुण्य लाभ लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सब मिलजुल कर ही ये सत्संग कर रहे हैं, है ना। सत्संग का जो मेन काम है वो तो मैं खुद से संभालूंगी। संगत परिवार आएगा तो मुझे बहुत खुशी होती है। संगत परिवार की इस तरह से जो सेवा की जाती है उसे करने में मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, तो वो मैं दिल से करती हूँ। जब मैं सत्संग करती हूँ संगत जी, मेरी कितनी मेहनत लग रही है ये मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि सत्संग बेशक एक दिन का होता है, लेकिन सत्संग के 10 दिन पहले से ही पूरी प्लानिंग दिमाग में शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझको एक्साइटमेंट रहता है, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं। और उसके बाद भी काफ़ी काम होता ही होता है सत्संग के बाद भी। तो क्योंकि घर भी बहुत बड़ा तो नहीं है, बस गुरुजी ने जितना ब्लेस किया है, और उसी घर में फर्नीचर को इधर से उधर करते करते बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत बैठ सकें। और बस इस तरह से करते हुए बहुत हार्ड वर्क करना होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सब के साथ साथ मैं आप सभी के सत्संग भी पहले सुनती हूँ, उसके बाद शेयर करती हूँ, तो सच में बहुत काम रहता है। जैसे कि आप काफ़ी सत्संग में सुनते भी हैं कि सत्संग शेयर करने का टाइम ही नहीं लगा। तो संगत जी देखिए, आपको तो थोड़ा सा ही 2, 4, 5, 7 मिनट का सत्संग शेयर करना होता है, तब आप टाइम नहीं निकाल पाते। मुझे तो इतना सारा वर्क करना होता है एक्स्ट्रा, और घर का काम तो मेरे पास होता ही है। तो सब काम करते हुए बहुत सारा टाइम जाता है, बहुत 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 मेहनत लगती है। लेकिन ये मेहनत वो है जिसे मैं बहुत खुशी खुशी करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे समझती हूँ कि गुरुजी का हुक्म है, और इसीलिए मैं आप सबके सत्संग शेयर करती हूँ। और जो गुरुजी को आपको मैसेज देना होता है वो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपके पास वो मैसेज पहुँचे, है ना। जैसे कि आज का एक छोटा सा मैसेज है। गुरुजी कहते हैं, जब आस, उम्मीद, आशा, अभिलाषा, अरज, दुआ, दोस्त, नीत, खुशबू, आंसू सब विच मैनू देखते हो, तो ऐ अरदास किता करो, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ना और मुझे अपने तरीके से चलाओ और सीधे रास्ते ते रखो, फिर और अपने चरणा विच रखो, फिर तेरी जिंदगी ते फैसले रब आप लेने वाला है। तैनू कदे
किसी चीज़ की कमी नहीं होवेगी, बस तू शुक्राना कर। तो गुरुजी तो हमेशा हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले लेते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं, और जितना गुरुजी डायरेक्शन देते हैं उतना मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट करने का प्रयास करती हूँ। संगत जी, यहाँ पर सत्संग आप सबके लिए गुरुजी भिजवाते हैं। किस संगत को, किस सत्संग को सुनाकर गुरुजी क्या ब्लेस करना चाहते हैं, वो तो देखो गुरुजी जाने, है ना। टेलीपैथी के माध्यम से जो भी संदेशे मुझ तक गुरुजी पहुंचाते हैं, मैं आगे आप सभी संगत परिवार के पास पहुंचाती हूं, क्योंकि गुरुजी आने वाले कष्ट को पहले ही भांप लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे सत्संग को शेयर करवाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं बड़े से बड़ा कष्ट तुम्हारा सत्संग सुनकर ही कट जाएगा। तो इसलिए संगत जी, आप थोड़ा टाइम निकालिए और सत्संग को पूरा सुनिए। और हाँ, यदि आप इस सत्संग में अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी सेवा देना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर जिस पे आप सत्संग शेयर करते हैं 9548842997 पर आप अपनी सेवा भेज सकते हैं। जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, कुछ भी आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। और QR मैं लगा रही हूँ, आप QR में भी अपनी सेवा भेज सकते हैं, ताकि ये सत्संग सुचारू रूप से हो सके। और इसका पुण्य लाभ संगत जी आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ना संगत जी, ये गुरु जी की योजना है। क्योंकि कोई काम अकेले कर पाना किसी के बस का जल्दी से नहीं होता, और जब सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो वो कार्य बहुत आसानी से हो जाता है ना। तो ये जो है, ये एक ऐसा बीज है कि ये आने वाले भविष्य में काफ़ी फ्रूट्स लेकर आएगा संगत जी, ये तो बात पक्की है ना। ये जब हम किसी चीज़ में इस तरह का सहयोग देते हैं, है ना, पूजा पाठ, सत्संग, इस तरह से, तो ये एक ऊर्जा है। यहाँ पर आप भेज रहे हैं, कोई ऊर्जा भेज रहे हैं। मनी क्या है? पॉजिटिव ऊर्जा। तो पॉजिटिव ऊर्जा को जब आप पॉजिटिव काम के लिए भेज रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास पॉजिटिव होकर ही आएगी, ये तो निश्चित है। और ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे गुरुजिया कहलवा रहे हैं। तो यहाँ से मिलती है आपको ब्लेसिंग्स। तो संगत जी, ये सत्संग, और यदि आप नहीं भी कुछ सहयोग करना चाहते, तो बस अपनी सुमन आंटी के लिए थोड़ी सी प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि मुझे वो पूरा सामर्थ्य और हिम्मत दे, शारीरिक बल भी दे और बुद्धि भी दे, कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इस कार्य को कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं, यहाँ के सत्संग अच्छे लगते हैं और मिलती है आपको यहाँ से ब्लेसिंग्स, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा संगत जी। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना खूब सारा लिख दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे सत्संग। और यदि आपका कोई सत्संग है जो आप सब संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं, तो भेज दीजिएगा 9548842997 पर। और मैं सुमन आंटी आप सबके लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आपको खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आज गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने मुझे कड़ा आदेश दिया है कि पहले शुक्राना कर, फिर कोई और काम करना। मैं गुरु जी की आज्ञा को मानकर गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, गुरु जी जाने। जो गुरु जी चाहेंगे मैं वही बोलूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आज मुझे क्या शुक्राना करना है। शुक्राने तो बहुत है मेरी ज़िंदगी में, जब से गुरुजी ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा है। मुझे बहुत सी बीमारियों से ब्लेस किया है, जो मेरी बहुत सी ठीक हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे कैंसर के बहुत ज़्यादा मैसेज आते थे, और मेरी ब्रेस्ट से ऐसे आग निकलती थी जैसे सच में मेरी कोई ट्रीटमेंट चल रही हो। मैं उन्हें ठंडे पानी से धोती थी, कभी मैं उन पे बर्फ़ लगाती थी, मेरी चेस्ट से ऐसे आग निकलती थी। मुझे कुछ दिनों बाद फिर ये चीज़ें आराम आई, और बहुत हद तक क्या, मुझे बहुत आराम आया इस चीज़ से। फिर गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज सुनवाए, जिससे मेरे घर से बहुत सी नेगेटिविटी गई। मेरे घर में इतनी ब्लैक चींटियाँ आती थी, ब्राउन चींटियाँ आती थी, मैं उनसे बहुत इरिटेट होती थी। फिर गुरुजी ने उन्हें भी हटाया मेरे घर से।
मेरे गुरुजी बोलते थे कि तेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो सत्संग सुन और ये नेगेटिविटी कटवा। मैंने बहुत से सत्संग सुने, जिससे गुरुजी ने मेरे घर को बहुत, बहुत, बहुत क्लीन कर दिया। बहुत सी चीज़ें गुरुजी ने मेरे घर से निकलवाई, इसलिए मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरे पति को भी ब्लेस किया। पहले मेरे पति बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। दिन में भी हफ़्ता-हफ़्ता कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे, बस सुबह से शाम तक ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक करते थे। अब गुरुजी ने उन्हें इतनी सद्बुद्धि दी है कि वो अब घर में बैठ के पीते हैं। शाम को पीते हैं, लेकिन कभी अब बाहर जाकर नहीं पीते। अगर कभी पीते हैं, तब भी गुरुजी उन्हें घर तक सही सलामत लेके आते हैं। मैं गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ कि गुरुजी मेरे पति को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत, बहुत। मेरी बेटी के ऊपर भी नेगेटिविटी थी, उसको भी दूर किया और मेरी सासू माँ को भी गुरुजी ने कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे मायके वालों को भी बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी आपका। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में मेरे जन्म से गुरुजी कब से मेरे साथ है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बचपन से सँभाला है। पर मुझे नहीं पता था, मुझे 2024 के अक्टूबर से पता लगा है कि गुरुजी का हाथ मेरे सर के ऊपर है, और तभी मैं इतनी अपनी लाइफ़ को झेल चुकी हूँ, जी चुकी हूँ, जो बहुत ही कठिन थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग मेरा अमृत वेले का है और गुरु जी ने की आज्ञा से ये सत्संग मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और ये सत्संग मेरा बहुत पुराना रुका हुआ काम था जो गुरु जी ने करवाया है, तो लख लख शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरु जी लव यू। गुरु जी जो आपने ये काम मेरा जो अरदास पूरी की है गुरु जी, मैं शब्द से निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं शुक्रिया, मतलब बारंबार शुक्रिया गुरु जी को, बहुत शुक्राना 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 मेरी कृपा। और सत्संग शुरू करने से और बताने से पहले मैं आप गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत पुराना एक केस था हमारा, 2018 से था, लेकिन मैं गुरुजी से तो अभी मैं 1.5 साल से जुड़ी हूँ। और 2018 का केस था ये। हमारे पैसे इन्वेस्ट हो गए थे ज्वेलर्स के पास, जो वो इन्वेस्ट करने के बाद वो देने के लिए मतलब इनकार कर रहा था। फिर हम चार्जशीट लगा के हमने केस किया, तब मतलब कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिल नहीं रहा था। फिर 1.5 साल हुआ मुझे, 1.5 साल नहीं, 1 साल ही समझिए गुरुजी से, समथिंग 1 साल हुआ। और फिर मैंने गुरुजी से अरदास तो भी मैंने रिसेंटली 1 महीने पहले ही लगाई थी गुरुजी से। हमारी मतलब अंतर मन में जो बात चलती है, गुरुजी से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई। यहाँ मैं तो चंडीगढ़ आके मैं शिफ्ट हुई, पहले मैं दिल्ली रहती थी। और फिर दिल्ली से चंडीगढ़ हाई कोर्ट की डेट, और फिर मतलब जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उस ज्वेलर्स सुप्रीम कोर्ट लेके गया केस को। फिर गुरुजी ने वहाँ पे हमें जो राहत दिलाई केस से, हमारे पक्ष में जो फैसला हुआ, संगत जी मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, बहुत हैरान। गुरुजी इतने सुनते हैं हमेशा, हर पल हर क्षण गुरुजी हमारी सुनते हैं, हम सबकी सुनते हैं गुरुजी। बस एक भरोसा होना चाहिए। बहुत दिनों से मैसेजलेस हो रहा था कि ये तेरा सारा काम बनेगा, अब वो टाइम आ गया है। और फिर वो टाइम आ गया था, और ये पिछले मंगलवार को हमारे हक में फैसला हुआ। और वो ज्वेलर्स को कोर्ट ने आदेश दिया कि जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं उसके ब्याज के साथ हमको लौटा दें। धन्यवाद गुरुजी, बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मंत्र जाप करना चाहती हूँ मैं गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रोम रोम से शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी। ये केस मेरा जो हल वो गुरु जी ने से जो मुझे राहत दिलाई है, मैं सोची भी नहीं थी।
गुरुजी ने मेरे को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। गुरुजी ने मुझे एक दलदल से निकाल के मुझे गुरुजी आज इतने बड़े सुंदर से घर में हमें आज गुरुजी ने दिखाया, घर हमें दिलाया। बहुत शुक्राना है, पिछले शुक्राना में मैंने सब कुछ बताया। मैं सावन में गुरुजी से जुड़ी थी। हर काम मेरा सोमवार को गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। अपने महाशिव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, अपना भरोसा और विश्वास गुरुजी पे बनाए रखिए, क्योंकि गुरुजी तो हमारे पिता हैं। अपने बच्चों को कोई कैसे छोड़ सकता है, कैसे भूल सकता है? हर काम को गुरुजी अपने समय से पूरा करवा ही देते हैं। गुरुजी, इंतज़ार करना चाहिए संगत जी। कभी-कभी तो बिन माँगे गुरुजी वो दे देते हैं, जो हम सोचे भी नहीं होते हैं। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। संगत जी, मैं ये सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। आगे सत्संग के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और मंत्र जाप के साथ ही सत्संग आगे सत्संग को पूरा करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सब गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं, हमारे बच्चों को भी ब्लेस करते हैं, किया है गुरु जी ने, सबको ब्लेस करते हैं, सबको ब्लेस करिए गुरु जी। सबको जो ये सुनता है, जो ये शेयर करता है, सबको ब्लेस करिए गुरु जी, सबकी मनोकामना पूरी करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, सारी सात संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की आज्ञा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सोमवार है और गुरु जी का वार है, महाशिव का वार है, और गुरु जी के रोज मैसेज आ रहे थे, कुड़िए शुक्राना करना भूल गई है क्या? चल शुक्राना कर। तो गुरुजी महाराज जी से मैं माफ़ी माँगती हूँ कि मैं अपना शुक्राना शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कफ़ एंड कोल्ड हो रखा था संगत जी। अभी भी आपको मेरी आवाज़ कुछ भारी लग रही होगी, मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी गला ऐसा तो कर दीजिए कि सत्संग शेयर कर पाऊँ। तो गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले गुरुजी का पावन मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने गला इस लायक बनाया कि आज हम आपकी कृपा से सब चीज़ शेयर कर पा रहे हैं। और आज सोमवार है और गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, कुड़िए सोमवार को कड़ा प्रसाद बना, और मैं बना ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया है और गुरुजी को भोग लगाया, और गुरुजी के चरणों में बैठ के ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत कृपा है मुझ पर और अपने बच्चों पे, अपने परिवार पर। गुरुजी महाराज जी ने के बहुत-बहुत शुक्राना कि उन्होंने अपने परिवार में हमें शामिल किया, हमें इस लायक समझा कि अपने शिव परिवार में हमें शामिल किया, और हमें शिव परिवार बोला उन्होंने, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि कुछ दुखद घटना होने वाली है कुड़िए, पर तू घबरा मत, तू सत्संग सुन, तुझे सब समझ में आ जाएगा। तो मैं गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना करी थी, गुरुजी महाराज सब ठीक रखना, सबको ठीक रखना, सर्बत को भला करना गुरुजी महाराज, कोई ऐसी घटना सुनने में ना आए। तो मैं सोच रही थी कि जो आपने न्यूज़ में सुना होगा संगत जी कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए, तो मैंने कहा शायद गुरुजी इसी के लिए मैसेज सुना रहे थे, हो सकता है कोई ऐसी वहाँ पे कोई ऐसा हमारा हो, जो कोई ऐसी घटना हो गई उसी से सुना रहे हो, पर ऐसा नहीं था। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था संगत जी कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बड़े बेटे का रिश्ता उन्होंने करवाया है, और उसकी तारीख 15 फरवरी उन्होंने निकाली है गुरुजी महाराज ने। उस दिन शिवरात्रि भी है, मैंने आपको ये सब बताया था पहले अपने सत्संग में। तो उन्हीं के घर में मेरी जो होने वाली डॉटर इन लॉ है, उनके दादाजी एक्सपायर हो गए थे, और गुरुजी महाराज ने कहा भी था कि कहीं से कोई कॉल आएगी और शायद तुझे बाहर भी जाना पड़े। तो गुरुजी महाराज की आज्ञा से हमें वहाँ जाना भी पड़ा, क्योंकि संगत जी जब रिश्तेदारी जुड़ गई है तो हम किसी के सुख में ना जाएँ, पर हमें दुःख में तो जाना ही चाहिए। तो गुरुजी महाराज जी हमें ले गए, लेकिन बहुत दूर जाना था, यूपी में सहारनपुर तक जाना था, और आपको पता ही होगा जो सहारनपुर बहुत दूर है यहाँ से, 5-6 घंटे का रास्ता है बस का। फिर भी गुरुजी महाराज ने हमें सुबह उठाया, हम यहाँ से 5 बजे गए, और यहाँ से कोई व्हीकल भी नहीं मिलता है जहाँ मैं रहती हूँ। फिर गुरुजी महाराज जी से प्रेयर करती रही, तो सब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मेरे साथ थे, तो बोले, "हमने गुरुजी से कहो ना कि वो अपने ई-रिक्शा भेज दें।" तो मैंने कहा, "हाँ, हाँ, गुरुजी भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे?" क्योंकि उस टाइम ठंड भी थी, कोहरा भी था थोड़ा, और कोई रिक्शा भी नहीं दिख रही थी।
तो गुरुजी महाराज जी ने 1 नहीं 2-2 3-3 रिक्शा उस टाइम भेज दी, तो मैंने कहा देख लो गुरुजी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 भेज दिए रिक्शा, बैठ जाओ सब। तो वो बोले, "हाँ, हाँ, तुम्हारे गुरुजी बहुत महान है ना।" मैंने कहा, "हाँ, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं।" तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमें ले गए, रिक्शा मिल गई और हम आराम से बस स्टैंड पहुँच गए। और जिस बस में गुरुजी ने हमें बिठाया उसमें भी गुरुजी महाराज साक्षात महादेव के रूप में विराजमान थे और उनका बहुत ही अच्छा भजन चल रहा था, वो वाला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर घर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर घर बोले नमः शिवाय। गंगाधर आए शिव गंगाधर आए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये सारे रास्ते चलता रहा और गुरुजी महाराज 4 बस बदल के हमारे को गुरुजी महाराज ने वहाँ पहुँचाया और 4 बजे बस बदल के ही हम अगले दिन वहाँ से आए भी, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे हम पहुँचने में, तो उन्होंने हमें आने नहीं दिया। लेकिन इतनी ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने हमारा बहुत ख़्याल रखा, हमारा बहुत मान-सम्मान करवाया गुरुजी महाराज ने। हमारे खाने-पीने का, उठने-बैठने का उन्होंने बहुत मान-सम्मान किया गुरुजी महाराज की कृपा से। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छा परिवार है गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी महाराज ने बहुत ही अच्छे लोगों से हमारा रिश्ता करवाया है और गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है कि आगे भी गुरुजी महाराज ऐसे ही रिश्तेदारी बनी रहे और बच्चों का आपस में जो भी रिश्ता आप बनवाएँगे वो बना रहे गुरुजी महाराज। और आप ही को ये सब संपन्न करवाना है। वैसे तो उन्होंने सब कुछ दादाजी के नाम का कर ही दिया है, क्योंकि उनको पता है घर में शादी आ रही है, उनके घर में भी बहुत रिलेटिव्स की शादी है, तो उन्होंने सब काम पहले ही कर दिया उनके दादाजी के नाम से जो भी दान-वान करना था। तो गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से कराया, हम बहुत अच्छे से आए और मैं तो गुरुजी का नाम लेके ही आ रही थी बस में, क्योंकि आपको पता ही है प्राइवेट बस वाले कितनी रफ़ बस चलाते हैं और ऐसे चला रहे थे कि बस ये एक्सीडेंट ही कर देंगे आज तो। तो मैं तो गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके और आँखें बंद करके बैठी थी बस। और एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत तेज़ कहीं से खुशबू आई है, बहुत तेज़। मैंने कहा यहाँ पे हाईवे पे तो कोई यहाँ पे मंदिर भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, एकदम बड़ी तेज़ खुशबू सी आई है कहीं से। ना कोई चढ़ा है यहाँ पे और सारी खिड़कियाँ भी बस खुली थी, थोड़ी-सी हवा आ रही थी उसमें से। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज को याद तो कर रही थी मैंने कहा गुरुजी महाराज जी आए होंगे शायद। मैंने कहा डाउट भी हो रहा था मुझे। मैंने कहा हाँ, हो सकता है गुरुजी महाराज जी होंगे, क्योंकि कहते हैं गुरुजी महाराज जी अपनी खुशबू से, अपनी फ्रेग्रेंस से ब्लेस करते हैं। तो मैं तो उस टाइम बहुत डर रही थी बस में कि गुरुजी महाराज ये बस वाला ऐसे चला रहा है और कई बार ऐसे ब्रेक मारे कि उसने, मैंने कहा ये तो एक्सीडेंट ही कर देगा आज तो, पहुँचा देगा ऊपर मुझे गुरुजी महाराज के पास ही। तो गुरुजी महाराज ने कहा, "नहीं, नहीं कुड़ी तू चिंता मत कर, मैं यहाँ बैठा हूँ। तेरे को घर पहुँचा दूँगा आराम से। मैं लाया हूँ तो मैं ही लाऊँगा, मैं ही ले जाऊँगा तुझे भी।" क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ संगत जी, तो मैं गुरुजी महाराज जी को साथ लेके जाती हूँ। गुरुजी बस साथ ही जाना, साथ ही आना। अपने बच्चों को अच्छे से लेके जाना, अच्छे से लेके आना, क्योंकि प्राइवेट बस में तबीयत भी पहले बहुत खराब हो जाती थी संगत जी मेरी। मैं तो एक ही बस का ट्रैवल करके इतनी तबीयत खराब हो जाती थी मेरी, लेकिन अब गुरुजी महाराज जी के जल प्रसाद से मेरा शरीर मतलब और पेट की जो भी बीमारी है गुरुजी महाराज जी ने इस प्रकार ठीक कर दी है कि मैं 4 बस बदल के चली भी गई, 4 बजे बस बदल के आ भी गई और मैंने घर आके भी आराम से सारा काम भी कर लिया और गुरुजी महाराज ने सब काम भी करवा दिया, पूजा-पाठ सब करवा दी गुरुजी महाराज ने, ऐसा लगा ही नहीं कि हम ट्रैवल करके आए हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जैसे आपके जल प्रसाद से जो-जो बीमारियाँ आप ठीक कर रहे हो, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में क्या-क्या बीमारियाँ पल रही है और आपके जल प्रसाद से वो कैसे ठीक हो जाती है। मुझे सिर में इतना दर्द रहता था, हर वक़्त मैं 2-2 3-3 दिन पड़ी रहती थी संगत जी। मुझे इतनी एंग्ज़ायटी है और एसिडिटी इतनी ज़्यादा बनती थी, कुछ भी खाने से मैं डरती थी कि मैं कैसे खाऊँ, गैस बन जाएगी, कैसे खाऊँ, एसिडिटी हो जाएगी। तो गुरुजी महाराज ने अब ये प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक कर दी है मेरी, बहुत हद तक ठीक कर दी है। नहीं तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान रहती थी, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुकराना। आप ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी रहमत बरसाए रखना। और गुरुजी महाराज जब हम वहाँ जा रहे थे, तो हम जब 4-5 घंटे उनके घर के आगे पहुँच गए, दोपहर में, सुबह के निकले हुए, तो अचानक एक बटरफ्लाई आई, ऊपर से होके गई, तो मैंने कहा, "जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप यहाँ पे भी आ गए।" और गुरुजी महाराज ने एक मोरनी के भी मुझे दर्शन कराए और जो व्हाइट बगुला होता है, उसके रूप में भी बहुत-बहुत दर्शन कराए गुरुजी महाराज। तो आपका लख-लख शुक्राना, अपनी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपनी कितनी कृपा बरसाने के लिए और भोलेनाथ के बहुत सारे मंदिरों के हमने बस में से दर्शन किए। बजरंगबली के बहुत सारे मंदिर थे, उसके भी बहुत-बहुत हमने दर्शन के लिए किए, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी महाराज आपका। और नीम करोली बाबा का भी बहुत-बहुत शुकराना, उनके भी बहुत अच्छे मैसेज आते हैं और वो भी हमेशा कहते हैं बेटा राम-राम लिख दे, तेरे सारे संकट टल जाएँगे। तो गुरुजी महाराज और नीम करोली बाबा का भी बहुत-बहुत शुकराना, जो हम पर इतनी अपनी मेहर बरसा रहे हैं, अपनी इतनी कृपा बरसा रहे हैं और अपने इतने अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं। और जो भी बच्चों पे संकट हैं और पति अंकल पे भी जो भी संकट है, उनके भी मैसेज देते हैं और सत्संग सुना-सुना के हमारे सारे संकट काट देते हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी महाराज। आप अपनी ऐसी कृपा बरसाए रखना और अपना मेहर भरा हाथ हम पर ऐसे रखना और हमारे सत्संग सुना-सुना के हमारे कष्ट कटवा देना गुरुजी महाराज। आप अपना भी ध्यान रखना
आप अपने ऊपर कष्ट ना लिया करो गुरुजी महाराज, क्योंकि आपको कष्ट होता है तो हमें भी कहीं न कहीं महसूस होता है कि हम कितने नालायक बच्चे हैं आपके, जो कुछ न कुछ गलतियाँ करते रहते हैं और फिर आपको वो कष्ट हमारे कटवाने पड़ते हैं। तो गुरुजी महाराज, आप उनको छोटे से ही कटवा दीजिएगा और अपने ऊपर कुछ ना लीजिएगा। और जो भी आपके बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी आपके बच्चे हैं, जो आपकी नाती हैं, आपने भी बेटी बनाया उसके लिए तो बहुत-बहुत शुक्राना। और आपकी बेटी के जो बच्चे हैं वो आपके नाती हुए। तो आप उनके नाना हैं, तो आप उनका ध्यान खुद ही रखोगे क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं। मेरे पास तो एक छोटा बेटा ही रहता है संगत जी, बाकी 2 बड़े बेटे बाहर रहते हैं। एक बैंगलोर रहता है, उसका भी गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा संकट काटा। उसके बहुत जैसे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है, तो छोटे वाले बेटे का फ़ोन आया एक दिन, बोला मम्मी मेरे पेट में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है और मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही है और मुझे ऐसे-ऐसे पेट की प्रॉब्लम हो रही है, मैं फ्रेश भी नहीं हो पा रहा हूँ, पता नहीं पेट में अचानक क्या हो गया है। तो मैंने कहा बेटा ऐसा कर तू कोई दवाई ले ले, बोला मम्मी दवाई से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर उसने पता नहीं उसको गुरुजी महाराज जी ने क्या सुझाया, तो वो 2-3 दिन फ्रूट्स पे रहा, उसने कोई बाहर का और ऐसा कुछ अनहेल्दी नहीं खाया, फिर वो ठीक हो गया। फिर मैंने उसको कॉल किया, तो बोला मम्मी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरे सब ठीक हो गया है। मैं ऑइंटमेंट वगैरह ले आया था और मैंने फ्रूट्स ही खाए और उसके बाद मैं ठीक हो गया हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज चलो बाहर रह के आप गुरुजी महाराज उसके दिमाग में अच्छे थॉट्स डाले और उसने अपनी तबीयत का ध्यान रखा। और बड़े वाले बेटे को भी आप ब्लेस करना गुरुजी महाराज, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उसको बहुत कोल्ड कफ रहता है, वो उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है गुरुजी महाराज शुरू से ही, क्योंकि वो प्रीमेच्योर हुआ था, 7 महीने में ही पैदा हो गया था। तो वैसे तो 7 नंबर लकी होता है, बताते हैं कि 7th महीने में जो बच्चा होता है बहुत लकी होता है, वैसे तो बहुत लकी है वो, 7 नंबर से उसको आपने ब्लेस भी किया है। उसका 25 अक्टूबर को बर्थडे था, गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से मनवाया था और 25 को ही मेरा बर्थडे आता है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे भी 7 नंबर से ब्लेस किया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और मेरे हस्बैंड को 3 नंबर से ब्लेस किया है गुरुजी महाराज ने, जो गुरुजी का ही नंबर है। 21st फ़रवरी को उनका बर्थडे आता है, तो गुरुजी महाराज और सबसे छोटे वाले बेटे को 4 नंबर से ब्लेस किया है गुरुजी महाराज, जो राहु का नंबर है, पर गुरुजी कहते हैं सारे नंबर मेरे ही दिए हुए हैं। तो गुरुजी महाराज आपने सभी नंबरों की ब्लेसिंग से हमें नवाज़ा है पूरे परिवार को। और हमारी होने वाली डॉटर इन लॉ को आपने 5 नंबर से ब्लेस किया है, उसका 23 तारीख को जन्मदिन आता है, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सब आपके ही ब्लेसिंग नंबर हैं। और गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे 13-13 नंबर की ब्लेसिंग का पता नहीं चला था, तो कल मैं गुरबाणी सुन रही थी, उसमें एक सत्संग चल रहा था जिसमें वाहे गुरु जी का जाप लगा हुआ था, तो उसमें 13-13 नंबर की मुझे ब्लेसिंग भी मिली गुरुजी महाराज से। और हम रास्ते में भी जा रहे थे, तो 2 बारी मुझे 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग भी गुरुजी महाराज ने दी। और एंजेल नंबर की और बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुजी महाराज हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी इतनी मेहर रखने के लिए, हमसे सहाय रहने के लिए, हर पल, हर पल, हर पल साथ देने के लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और सुमन आंटी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग शेयर कर देती हैं। गुरुजी महाराज आप पर अपनी कृपा यूँ ही बरसाए रखें। वैसे तो मैं गुरु सुमन आंटी को हमेशा सुमन आंटी बोलती हूँ, लेकिन वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, क्योंकि मेरी कोई सिस्टर तो है नहीं, ना छोटी ना बड़ी। तो मैं सुमन आ गुरुजी कहते हैं कि चल तुझे आज सुमन आंटी की जगह सुमन दीदी बोला कर तू। तो मैंने कहा चलो गुरुजी महाराज आपकी बहुत-बहुत शुक्राना। अगर मैं सुमन आंटी को सुमन दीदी बोलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रही हूँ। तो सुमन दीदी आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर कर देती हैं और जब मुझे आप अपना सत्संग सुना देती हैं, तो मैं गुरुजी की कृपा से आपको रिप्लाई करके उसका मैसेज दे भी देती हूँ। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। सारी संगत का ऐसे ही ख़्याल रखना गुरुजी महाराज और अपना भी ख़्याल रखना गुरुजी महाराज। और ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखना और ससाए रहना गुरुजी महाराज, मैं यही चाहती हूँ। और बस इसी के साथ अपने सत्संग का विराम करती हूँ। सत्संग तो बहुत से होते हैं, पर हम भूल भी जाते हैं गुरुजी महाराज, उसके लिए माफ़ी दे दीजिएगा अपने बच्चों को, नादान बच्चों को। और आगे जैसे-जैसे गुरुजी महाराज सत्संग करवाएँगे, बिठाएँगे, क्योंकि गुरुजी महाराज मुझे तो अचानक ही सत्संग के लिए बिठाते हैं। मेरा कोई ऐसा निश्चित वो नहीं होता कि मैं टाइम दे के उसके लिए बैठूँ, तो गुरुजी महाराज जी बस जिस टाइम टाइम हो जाता है, उसी टाइम मुझे बिठा लेते हैं, उनके आगे हो जाती है और मैं सत्संग करने बैठ जाती हूँ और गुरुजी जो बुलवाते हैं मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मैं सोच के नहीं बोलती कि मेरे को क्या बोलना है। तो उसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी महाराज बाकी सारे काम जो रुके पड़े हैं, वो आपको ही बनाने हैं, आपको ही करने हैं साथ चल के। क्योंकि मैं तो अकेली हूँ और ना अकेली होकर भी अकेली नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज आप साथ हैं। आप ही को सारा काम हाथ पकड़ के करवाना है अपनी बेटी से, क्योंकि अभी देखा जाए तो वैसे तो मैं इस घर में काम करने वाली अकेली ही हूँ। मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा है आपके सिवा गुरुजी महाराज। तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम-अनंत शुक्राना, हर दात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना जो हर पल आप हमें उठाते हैं, जगाते हैं, सारे काम घर के करवाते हैं, हाथ पकड़ के।
और जो भी आप थोड़ी बहुत सेवा करवाते हैं, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। बस ऐसे ही कृपा अपनी बरसाए रखना गुरुजी महाराज। अपना आशीर्वाद बस बरसाए रखना बस, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, सिर्फ़ आपका आशीर्वाद चाहिए, सिर्फ़ आपका आशीर्वाद गुरुजी महाराज, आपका प्यार जो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही निराला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुजी महाराज। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा स्वाय। संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरु जी महाराज आपकी रहमतें इतनी है कि किस किस रहमतों का शुक्राना करिए, किस किस रहमतों का व्याख्यान करिए, इस करके सारी रहमतों का शुक्राना सबसे व्याख्यान कर दिया कि गुरु जी महाराज की बेअंत रहमतों का बेअंत शुक्राना है। दिन पर रात भी शुक्राना करते रही, तब भी ज़िंदगी भी कट रही। इतने रहमते हैं, बहुत रहमते हैं अपने गुरु जी महाराज ने। हर पल हर क्षण अपने पूरे परिवार का साथ दिया है। गुरु जी महाराज हमारे मिलने से पहले हमें पता नहीं था कि गुरु जी महाराज ही हमारी इतनी रक्षा करते हैं। हमारे सारे बहन भाइयों में सबसे गुरु जी महाराज ने मुझे दूर कर दिया है, और गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए ही ब्लैक मैजिक करते हैं। ब्लैक मैजिक का नहीं पता था, अब पता लगा। गुरु जी महाराज ने साफ शब्दों से बताया कि यही ब्लैक मैजिक करते हैं। आज भी यही कहते हैं कि तुम्हारे पीछे एक तुम्हारे घर का सदस्य है और एक गवांड का, वे दोनों तुम्हारे पे करवा रहे हैं। गुरु जी महाराज जी, आप जी ने अपने पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस की है। हमारा बाल भी पिंगा नहीं है, मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई, मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई। गुरु जी महाराज जी, सन 2019 में कनाडा आई थी। 2019 में जब मैं आई तो मैं बहुत अच्छी स्वस्थ मस्त आई थी। तो मैं जब वहाँ से चली, जब भी मुझे बहुत बीमार हो गई मैं एक दिन पहले, और उसके बाद मैं चलो आ गई, तो यहाँ पे आकर मुझे बहुत ब्लीडिंग चलने लगी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि कोई कितने किराए नाल भी ब्लीडिंग चल पड़ दियाँ, और मैं सत्संग सुन दिया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत दसते हैं भी सानू ये रोग हो गया, ये वो हो गया, ब्लीडिंग का ही कोई मेंसेस पीरियड को कहना बताते हैं। तो गुरु जी महाराज, मैं भी यही संगत जी को बता रही हूँ कि मैं बहुत बढ़िया आई थी। तो जब मैं आई तो मुझे 6 महीने भी मैं यहाँ रही नहीं। तो उसके बाद मुझे इतनी ब्लीडिंग होने लगी कि मैं यहाँ पे भी चेकअप कराया, अपनी इंश्योरेंस कराई हुई थी। तो कहने लगे यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ना तुम्हारी जब डॉक्टर कहते हैं ना इतने कि इमरजेंसी तद इंश्योरेंस पेमेंट करती है, वरना नहीं। तो इस करके फिर मैं 2-3 महीने और रह के चली गई इंडिया, और इंडिया जाके भी मैं चेकअप कराया। यहाँ भी कह रहे कि नहीं, कोई रसोली नहीं है। और इंडिया गई तो उन्होंने भी कहा कि कोई रसोली नहीं है, पर ब्लीडिंग बहुत थी। मैंने कहा नहीं, तुम मेरा यूट्रस मूव कर दो, रिमूव मत कर दो भाई, मैं ऑपरेशन ही कराना है भाई, केमिकल को कोई बात बने। तो वो कहने लगे नहीं है, जब रसोली गई नहीं। मैं कहा नहीं। जब वो मेरा ऑपरेट करने लगे तो वो कहने लगे पता नहीं क्या इतने लोथड़ी अंदर बने हुए थे, जो कि बड़े खींच के बड़ी मुश्किल से बाहर निकाले उन्होंने कहा, और टेस्ट के लिए बम्बे भी भेजा। तो ये गुरु जी महाराज, रसूल ही नहीं थी, पता नहीं कितना बड़ा गंदा रोग होगा, जो कि गुरु जी महाराज ने आज मेरे 2019 की दिसंबर से ये रोग छोड़ दिया। और अब भी गुरु जी महाराज मुझे कैंसर वगैरह के बहुत सत्संग सुनवाते हैं, पर गुरु जी महाराज की कृपा से मेरा रोग टूट गया। जब मैं यहाँ आई तो जब मेरा मतलब अपना स्टेशन लाई था, उन्होंने मेरा मेडिकल किया था, तो उसमें भी कोई थोड़ी सी कीटाणु का फ़र्क बताया। तो उन्होंने भी इंजेक्शन दिए थे, 2 इंजेक्शन कि लवा लो तुसी, तो लवा भी लिए हमने। तो ये गुरु जी महाराज की कृपा है, चाहे हमें गुरु जी महाराज मिले नहीं, अब तो हमें साथ दर्शन देते हैं गुरु जी महाराज। लेकिन देखो, अगर गुरु जी महाराज की मेहर थी तो बिना रसूली के भी मैंने अपना यूट्रस मूव करा था, और कहा कि मैं नहीं रखना भी, मैंने तुसी क्लीन करो, तो मैं भाई ऑपरेशन कर दो। कहने लगे कि मैं क्या भी, मैं दिसंबर से गई थी, मैं जनवरी से आ जाऊँगी। जब कोरोना हो गया तो कोरोना करके मैं फिर 1 साल वहीं रही, इंडिया ही। दिसंबर में आई फिर मैं यहाँ आती ही मेरी बच्ची के बेबी होने वाला था, वो 4-5 महीने का था, मैं तभी आई थी। तो वो भी पेट में ही पूरा हो गया, तो इसे मेरी बच्ची को भी पता नहीं लगा। 15 दिन बेबी की डेथ हुई थी, इसे कुछ कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, इसे कुछ पता नहीं। उस दिन भी स्कैनिंग कराने गई थी, तो इन्हें पता लगा कि तुम्हारे तो बेबी मूवमेंट नहीं करते, तो इसलिए इन्हें पता लगा। और गुरु जी महाराज, आपने अपने परिवार को इतना बचाया, गंदी बीमारियों से भी बहुत बचाया, मुझे तो बहुत ही बचाया। मेरे अभी दोनों यूट्रस हैं जो मेरे दोनों साइड से निकाल दिए, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ने बताया था कि अगर कनाडा में आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो तुसी कहना है कि मेरे दोनों निकाल दिए उन्होंने। फिर कहने लगा कि हमें पता ही नहीं कि वो क्या चीज़ थी। तो गुरु जी महाराज, जिस तरह आपने अपनी रहमतें करके मेरा इलाज कराया और मुझे बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, तो इसमें मेरे गुरु जी महाराज करते हैं। तो ये गुरु जी महाराज की मैं किस तरह बढ़ियाई करूं। तो मैं तो चाहे मुझे वे 24 मई में मिले हैं, 2024 में मिले हैं,
तो मेरा तो ऑपरेशन में हो गया 2019 की दिसंबर को, तो इसलिए मैंने तो गुरुजी महाराज को क्या कि हमें पता ही नहीं कि गुरुजी महाराज कब मिले कब नहीं, पर हमारे जब अब दिन जाते बहुत ख़राब हुए और मेरे बहन भाई मेरे पीछे पड़ गए, तो अब गुरुजी महाराज ने साथ साथ दर्शन दिया और मुझे बचाया, अपने पूरे परिवार को बचाया। मुझे अब कोई फिक्र नहीं है, बस मैं तो गुरुजी महाराज को कहती हूँ जैसे आपने हमारे ब्लैक मैजिक काटे हैं, बचपन से लेके आज तक ब्लैक मैजिक को में फिरते थे, पर हमें पता नहीं था ब्लैक मैजिक क्या होता है, क्योंकि ना तो हमने आज तक किसी को पूछा, ना हमने आज तक इलाज करवाया। सिर्फ हम तो थोड़ा बहुत पंडितों की चले जाती सी, तो पंडित की जब मैं चली जाती सी तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से पहले एक निर्मल बाबा टीवी में आते थे, टीवी में देखती थी मैं उन्हें, तो वे उन्होंने मुझे कहा कि पंडितों को क्या पता, तुम पंडितों के जाते, तो मैंने अपने सारे टीवी टूवी सब उनके कैसे, जैसे मैं गुरुजी महाराज पे विश्वास करूं तो मैं उन पे भी विश्वास करूं थी टीवी में देख के, तो मैंने सब पढ़ दिया। तो मैं उसके बाद 2010 के बाद मैं कभी पंडित जी के पास नहीं पूछने के लिए भी गई। जब निर्मल बाबा मुझे मिले थे तो निर्मल बाबा का थोड़ा बीच में फ्रॉड हो गया, तो मेरे घर वाला मेरे जो अंकल जी है ना, उन्होंने क्या नाम कहा कि नहीं मैंने तो दसवंध गाड़ नहीं, मैंने नहीं कुछ दे के जाना, मुझे फंसा देगी तू, ये ऐसे लड़ाई करने लगे, तो मैंने दसवंध रखनी शुरू कर दी कि चलो जब कोई भी देखेंगे। तो उसके बाद मुझे एक पंडित के ले गया मेरे अंकल जी, वो किसी के साथ गए थे, तो उन्होंने सारी दसवंध मेरी रख ली कि ना तुम्हारे घर में यो पड़ा, तुम्हारे घर में यो पड़ा, ऐसे कह के सारी दसवंध उन्होंने मेरे से ले ली, पता नहीं कितनी सारी दसवंध सी। तो उसके बाद फिर मैंने नैना देवी माता के मंदिर में ही देना शुरू कर दिया। तो इसलिए वो निर्मल बाबा की बताए रास्ते पे मैं आज तक चल रही हूँ, ना तो उन्होंने पंडित के जाने को बताया और ना ही कर रही हूँ। और हमारा बचपन से लेके आज तक पता नहीं कितना तक रहा ऐसी, पता नहीं हमारे पे ब्लैक मैजिक है, पर मैं तो अपनी ज्योत और भगवान पे विश्वास रखती हूँ। तो इसलिए मैंने कभी किसी का ना बुरा करा, ना कभी किसी का बुरा सोचा, और ना ही मैं किसी का बुरा देखती हूँ। बस मैं तो भगवान को कहती हूँ भगवान जी आप भी पहचान वाले हो, गिरते गिरते को मुझे साथ देने वाले मेरे भगवान जी हैं। आज मुझे गुरुजी महाराज ने साथ साथ बताया कि तेरे बहन भाई तेरे ही ससुराल के हैं, तेरे ही घर के हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती। मैं कहती जो हुआ मेरे कर्म में, मैंने भी कुछ इनका बुरा करा होगा जो कि ये मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं, मेरे परिवार के साथ। मेरे परिवार के 4 जी हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, 2 हम हैं। एक अंकल जी इंडिया में बैठे, बच्चा यूरोप में बैठा, बच्ची कनाडा में बैठी। बताओ हमारा परिवार तो बिखर गया ना, कोई हमारे परिवार का सम्मेल नहीं है कि हम सारा परिवार इकट्ठा होकर बैठा है, नहीं हम अलग अलग बैठे हैं सारे। एक बच्चों के, एक बच्चा यूरोप में, एक अंकल जी इंडिया में कोठी साँभ रहे हैं, मैं बच्ची के पास उसके बच्चे के लिए। इस तरह गुरुजी महाराज आपकी रहमतों का व्याख्यान मैं किस तरह करूं। आप जी ने मुझे बहुत बचाया और मेरा शरीर भी अब आप ही चला रहे हो, मेरे अंदर कुछ नहीं है, सब मेरे गुरुजी महाराज चला रहे हैं। मैं बहुत कमज़ोर भी हो गई हूँ और गुरुजी महाराज बस मेरी शक्तिशाली दो और अपना सिमरन कराओ। जो भी मेरे से सिमरन की सेवा गुरुजी महाराज लगाएंगे गुरुजी महाराज ही कराएंगे। जो कुछ उन्होंने कराना, जो कुछ उन्होंने करवाना, उन्होंने ही करवाना है। इसलिए संगत जी मैं तो यही आपको सबको विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के, पहले तो सबसे पहले सुमन आंटी जी से और संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। और दूसरी बात संगत जी, अपने गुरुजी महाराज पे इतना विश्वास रखो कि दुनिया इधर से इधर आ जाए पर हम डोल लेना, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमसे कुछ नहीं लेना, ना हमसे हम कुछ दे सकते हैं। गुरुजी महाराज तो कह रहे हैं सिमरन करो, अपना कर्म कटवाओ, वो तो हमारा ही भला करवा रहे हैं। इसलिए गुरुजी महाराज जिस शब्दों से आपका शुक्राना करूं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। और गुरुजी महाराज अपने शुक्राना कराने के लिए, थोट देने के लिए और अच्छी सेवा करवाने के लिए आप जी के तहे दिलों सत्कार कर दिया, कोटि कोटि शुक्राना कर दिया, कोटि कोटि शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी महाराज, बाबा गुरुजी महाराज, बाबा गुरुजी महाराज। अपने पूरे परिवार को खुशियों से झोलियां भरने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने पूरे परिवार को खुशियां मनाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। सुमन आंटी जी की जो भी अरदास है वो आप पूरी करो, जल्दी पूरी करो। हमारी भी बेनती है कि सुमन आंटी जी को खुशी से झोलियां भर दो। सुमन आंटी जी गुरु जी कल्याण कितना। मैंने अभी 2 दिन हो गए, मैंने अपना कोई तीसरा शुक्राना शेयर कर रही हूँ। 2 शुक्राने अभी मैंने अपने सुने नहीं है, क्योंकि मैंने सुने नहीं, पर मैंने सेव कर लिया, क्योंकि मैं घर पर नहीं थी और फ़ोन में कभी कहीं जाती हूँ तो मैं लेके नहीं जाती, क्योंकि मेरा आईफोन है और बड़ा फ़ोन है तो कहीं मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं लेके नहीं जाती। तो मैंने जब भी सुनूंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने अपने सत्संग सुन लिया है। आप अपलोड करती रहना। गुरुजी महाराज जी आपने कराने, आपको मैंने तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करा है, आपके श्री कमल चरणों में भेज दिया है। आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है और सुमन आंटी जी ने अपलोड करके पूरी संगत जी को सुनाना है। गुरुजी महाराज की रहमतें हैं। और उस टाइम मेरा बहुत हालत ख़राब थी जिस टाइम मैंने अपना वो टाइम काटा, और मुझे ओम शांति के साथ भी मैं जुड़ी हुई थी। और उसके बाद मुझे बाबा मिले हैं जब मैं यहाँ आ गई 24 में। देख लो मैं 22 की आई हुई थी, मैं ओम शांति से जुड़ी हुई थी। ओम शांति से बाद
बाद बाबा मिले। बस मुझे वही है कि वो मेरे शिव बाबा मेरे बाबा हैं और गुरु जी मेरे गुरु जी महाराज हैं। गुरु जी महाराज के होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं है। सुमन आंटी जी की झोलियाँ खुशियों से भर दो। और जिना सुमन आंटी जी को आप जी ने सेवा लगाई है सरबत भले का शुक्राना सत्संग करने की, वो आप जी भी कराओ और संगत जी को भी आशीर्वाद दो कि खुशियों से मनाएं। सुमन आंटी जी भी और हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमें यह पता लगता है कि इस तरीक का सरबत भले का शुक्राना सत्संग है। हमें बहुत खुशी होती है। सुमन आंटी जी को बल बख्शो, हेल्थ बख्शो, वेल्थ बख्शो, हैप्पीनेस करो और बहुत खुशियाँ दो और करने की शक्ति दो। और सारी संगत जो भी सेवा करती है वहाँ पे उन्हें भी शक्ति दो। ये हमारा परिवार है, इस परिवार को एकजुट होकर सेवा करनी है, सेवा करवानी है और सत्संग मनाना है। खुशियों से नाचते हंसते खुशियाँ मनाए और सुमन आंटी जी सबको खुशियाँ बांटती रहे और सबके पल्ले खुशियों से भरते रहे। जय सुमन आंटी जी। शुक्राना सुमन आंटी। मेरा शुक्राना सत्संग फिर बहुत बड़ा हो रहा है। ये कल को तैयारी करती हूँ नवे शुक्राना सत्संग की। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्वाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहस्वाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्वाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहस्वाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। अपने हमेशा जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। सारी संगत परिवार को भी जय गुरु जी और सुमन आंटी जी को भी जय जय गुरु जी। संगत जी बस गुरु जी की इतनी कृपा, इतनी मेहर, इतनी ब्लेसिंग बरस रही हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। गुरु जी के गुणगान कैसे गाऊं मुझे नहीं पता। मुझे गुरु जी महाराज इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, दिन रात ब्लेस कर रहे हैं संगत जी कि गुरु जी महाराज कहते खुश रहा कर, टेंशन ना लिया कर, बेफिक्र ज़िंदगी जियो, खुश रहो। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਤਾ, ਐਕਟਿਵ ਬਣਾਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਵਾਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਨਾਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੋ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਔਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਸਥ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਏਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਔਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦਾਤਿਆ, ਜਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਾ ਚੁਣੀਏ, ਬਸ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਸਡ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ अमावस के पावन दिन पर पुत्र तुम्हें आशीर्वाद है, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनने वाले हैं, बस शुक्राना करके शेयर जरूर कर देना। शुक्राना 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 दातिया। और गुरु जी कहते फैसला तेरे पक्ष में होगा, तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, अभी सुन सत्संग। शुक्राना शुक्राना दातिया शुक्राना। गुरु जी कहते बेटा कितना सोचोगे, एक दिन दिमाग फट जाएगा। सूनापन खालीपन तन्हाई अगर 30 से उम्र हो ऊपर हो तो इस सत्संग को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना। संगत जी मैं सुनिया सी सत्संग, बस गुरु जी महाराज दिन रात ब्लैस कर दिया, कष्ट कट दिया, सत्संग सुनवा के हर पल अपने होने का एहसास करवाते। कुल देवी देवताओं का शुकराना, मेरे इष्ट देव का शुकराना, मेरे गुरुआं पीरा फकीरां का शुकराना। गुरु जी कोई भी देवी देवता नाराज़ ना होन, कोई भी मेरे पितर नाराज़ ना होन, किसी ने भी कोई दुख तकलीफ ना हो, पितरां नूं मोक्ष दो गुरु जी, कोई रुकावट ना आवे किसी के कार्य। सारी संगत परिवार के काम सफल होन, सब दी इच्छावां पूरियां होन, सब दे घर खुशियां ही खुशियां होन मालिक। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सरबत दा भला करो गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सरबत दा भला। शुकराना गुरु जी शुकराना। और गुरु जी ताड़ी बेटी अगर सत्संग कोई शेयर करना भुल गई होवे तो माफ़ कर दिओ। आंटी जी सुमन आंटी जी ये मेरा पहला शुकराना सत्संग आ, 15 दिन की सेवा बख्शी आ गुरु जी महाराज ने। बस गुरु जी तुसी अपनी बेटी की बांह फड़ के जरूर डेली करवाना वा, अपना शुकराना सत्संग चरना शेयर करवाओ मेरे मालिक। और ताड़ी बच्ची थोड़ा ठंड करके थोड़ी आलस कर जाती है, प्लीज़ एक्टिव स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनाओ, बना भी रहे हो दाता।
बस किसी चीज़ की कमी ना आवे। तुहाडी बेटी दी हैल्थ वैल्थ ब्लैस कर दो, बस पूरे परिवार ते कृपा मेहर कर दो। दात्या कीती भी होई आ हर पल माफ़ कर दिओ जे कोई गलती कीती होवे। शुकराना सत्संग करन वक्त गुरु जी, संगत जी मैनूं माफ़ कर दिओ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। ये मेरे संध्या वेले का सत्संग है। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर यह सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने आज बताया इस सत्संग में व्यक्ति द्वारा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। गुरु जी, ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है। आप जब चाहे आ सकते हो गुरु जी। इसके लिए आपको कोटान को शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लखों बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मुझे टेलीपैथी द्वारा पहले ही बता देते हैं कि परिवार पर क्या कष्ट है और सत्संग सुन के कष्ट कटवा देते हैं। इसके लिए भी गुरु जी का कोटान को शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लखों बार शुक्राना गुरु जी। मैं और मेरे बच्चे आपके हैं गुरु जी। आपको ही ये घर को चलाना है और मैं जानती हूँ आप अच्छे से चलाओगे। और आपने मुझे मुट्ठी भर संगत में चुना है, तो आप के ऊपर मैंने सब कुछ सौंप दिया है। जो आपको अच्छा लगे, जो हमारे लिए अच्छा हो वही करें। सत्संग सुनाने में गुरु जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। सुमना आंटी आप भी क्षमा करना। मैंने मंत्र जब बार बार भूल जाती हूँ तो अब करती हूँ। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी के भी सारे कार्य उनके बच्चों के आप अच्छे अच्छे कर देना। संगत जी को भी ब्लेस करना, सुमन आंटी को भी ब्लेस करना और साथियों के पीछे हम परिवार को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मधु बोल रही हूँ। मैं संगत जी पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा का तो कोई बखान ही नहीं कर सकता। गुरु जी की महिमा ऐसी है। गुरु जी कह रहे थे मेरे परिवार पर 3 दिन भारी हैं। संगत जी, कल हम घर से बाहर निकले तो पहले मैं जैसे कैब में बैठने लगी तभी एक पाँव अंदर रखा था कि ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। बेटे ने चिल्लाया तो वह गाड़ी के साथ दौड़ रही थी क्योंकि दरवाज़ा खुला था। मेरा एक पैर गाड़ी के अंदर था और एक पैर बाहर। गाड़ी रुकी पर कोई चोट नहीं लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर रास्ते में आते टाइम पे एक ट्रक एकदम से इतना नियर आ गया कि टकराते टकराते बचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जब घर पहुँचे तो देखा कि घर पर जो फिश का जार रखा था उसमें 3 गोल्ड फिश इकट्ठी मर गई। एक ही ब्लैक कलर की बची है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, समझ नहीं आया जो दिन में ठीक थी रात को कैसे मर गई। मुझे तो लगता है जो परिवार पर कष्ट आना था वह फिशेस ने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के वचन सत्य होते हैं। गुरु जी, हमें गुरु जी के वचनों पर ध्यान देना चाहिए। संगत जी, हमें गुरु जी के वचनों पर ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भी गुरु जी का मैसेज आया था, मैंने तुझे बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया है, उसे छोटे में काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, अब मैं क्या बताऊं आपको। ब्लैक मैजिक करने वाले तो पीछा ही नहीं छोड़ते जब तक किसी को बर्बाद न कर दें। गुरु जी उनको सद्बुद्धि दे। उन्होंने हमारे घर पर इतना ब्लैक मैजिक किया, मेरे पति अंकल की तबीयत खराब हो गई, दिन दिन खराब होती रही। कभी घर पर कभी हॉस्पिटल में, यही सिलसिला 3 महीने तक लगातार चलता रहा। दवाई ने भी अपना असर करना छोड़ दिया। अब धनतेरस पर उनकी डेथ हो गई। संगत जी, क्या कहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं कि मारण क्रिया करवाते हैं। ये मैसेज पहले भी आ रहे थे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हमें क्या पता कि इन चीज़ों का सचमुच इतना असर हो सकता है। अब तो गुरु जी को करना है जो भी करे। अब लेकिन मैं तो अकेली हो गई ना।
अपने छोटे बेटे के साथ रहती हूँ। अब लगता है जैसे बहुत ही अधूरी फील कर रही हूँ। क्या करूँ? अब तो गुरुजी का ही सहारा है, वही मेरे साथ रहेंगे। मैं गुरुजी को यही कहती हूँ, अब मुझे अपना सहारा है, अब मुझे आपका सहारा है, आप मुझे नहीं छोड़ना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो मुझे रिश्तों से भी डर लगने लगा है। अब गुरुजी अंग संग साही रहें और अपने चरणों में रखें। मुझे आप ही का सहारा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यह सत्संग शेयर कर देना, जो भी शेयर करेगा उसे गुरुजी बहुत ब्लेस करे, उनकी सब अरदास पूरी करे। अब मैं यही विराम करती हूँ महामंत्र के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।